Hello students, welcome to your PDF. I am Jitendra Tyagi and again I am here to share some important information with all my dear students. Okay, so those who did not get any seat up to now through COAP or CCMT and who are willing to join MTech program, so still there is opportunity for you people. Okay, and one of the best college for MTech program among NITs is NIT Calicut, and today they have announced this notification regarding the sport admissions in MTech program. Okay, so let us discuss the details about this sport admission. Okay, when it will start and when will it will happen, everything. You can see National Institute of Technology Calicut, a very good college in terms of placements, very reputed college. So sport round for admissions to MTech, MPlan, MSc programs 2022, and this is applicable for candidates with a valid GATE score. Okay, so those who don't have a valid GATE score. Okay, so this is not for those people. This is for those having GATE score, whether it is low GATE score or average GATE score, but valid GATE score is required. This is our first important point. Okay, so sport admission लेकिन वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपको, ठीक है, चाहे लो गेट स्कोर है, इवन यू हैव 300 गेट स्कोर, इफ इट इज वैलिड गेट स्कोर, क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, देन यू आर एलिजिबल. Now we can see that students who are already admitted to NIT Calicut are not eligible for the institute sport round. Okay, so those students who have joined NIT Calicut in some branch, they are not eligible for this institute sport round, right? So other students can try, but not those who already joined this NIT Calicut. This is important point. जिन्होंने NIT Calicut में एडमिशन लिया हुआ है वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे. Now what is the date of this sport admission process? Friday 26th of August. Remember this date in your diary. 26th August, Friday. And registration time is from 8 AM to 10 AM, and it is Bhaskara Hall, NIT Calicut. So it means it is offline. It is going to be offline. So आज है 23, ठीक है, 23rd, और आपको यहाँ 8 बजे पहुंचना है. You have to reach there 8 AM. So it means you have to make your arrangements for transport today itself, because you try to reach there up to 25th evening, okay, or midnight. ठीक है, 25 की मिडनाइट तक अगर आप कालीकट पहुंच जाते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, सो स्टार्ट सर्चिंग फॉर ट्रेन्स और प्लेन्स और वट एवर ऑप्शंस यू हैव, ओके, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन. सो प्लीज नोट डाउन, ऑफलाइन होगा, 8 से 10 बजे के बीच में होगा. रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड 10 AM इज नॉट परमिटेड. 10 बजे के बाद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे 26 तारीख को पहुंचना पड़ेगा फिजिकली आपको. यू हैव टू रीच देयर. ओके, नाउ eligibility conditions. Admissions to MTech program through sport admission at NIT Calicut will be same as CCMT 2022 eligibility norms. So जो बच्चे CCMT के लिए eligible थे NIT Calicut में, same criteria is applicable here also. Okay, CCMT वाली ही terms and conditions चलेंगी यहाँ पे, ठीक है. लेकिन अगर आपने CCMT में अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, आपने फॉर्म फिल नहीं किया था CCMT का, it's okay, then also you are eligible. If you have valid GATE score, you are eligible. Okay. Now, what are other important points? Registration for sport admissions. So now those who are eligible, who satisfy the eligibility criteria of NIT Calicut, okay, those who have a valid GATE score, they have to complete online registration for sport admission using the following link. So ये आप website visit करोगे, there you will find the details. So you will get a link. You have to click this link there. Register with your email ID and mobile number for creating a login in the online portal, and candidates have to pay registration fee of 1000 for these categories and 500 for these categories. Okay, SC ST के लिए 500 और 1000 for OPIN, EWS, OBC और PWD candidates के लिए, ठीक है. Now registration fee has to be paid through State Bank Collect online by the following link. So payment का link भी given है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से पे करना है. जनरली पीडब्ल्यूडी को इसी कैटेगरी में रखा जाता है,
500 वाले में, बट इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। ये इनका मतलब इनको रखना चाहिए 500 वाला, ये डिस्काउंट मिलना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी। ओके, नाउ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फी पेमेंट, द रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ पेमेंट etc हैज टू बी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। जब आप पेमेंट करोगे तो ये डिटेल मांगेंगे आपसे कि भाई उसका रेफरेंस नंबर क्या था पेमेंट का, किस तारीख को पेमेंट किया, सो ये आप उसमें फिल करोगे। स्पोर्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल है, ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा, वंस पेड इट इज नॉट रिफंडेबल। और ये कब एक्टिव होगा? 23 को 4 PM, ठीक है ना। दिस ऑनलाइन लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 AM 23rd to 4 PM 25th। ओके, सो आज 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है और ये 25 तारीख को 4 PM तक चलेगा। तो ये डेट नोट कर लो, आज स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से और ये 25 को 4 PM तक इट विल कंटिन्यू। ओके, सो बिफोर दैट यू हैव टू डू दिस रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी एंड फी पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए साइन प्रिंट आउट शुड बी टेकन। ओके, तो जब आप ये सबमिट कर दोगे तो आपको एक प्रिंट आउट लेना, याद रखना ये प्रिंट आउट लेना नहीं भूलना। ए साइन प्रिंट आउट शुड बी टेकन एंड सबमिटेड टू भास्करा हॉल, ये आप अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको वहां पे सबमिट करेंगे। व्हेन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाएंगे ना, वहां पे सबमिट करेंगे। ऑन द डे ऑफ स्पोर्ट एडमिशन 26 अगस्त, स्पोर्ट की डेट 26 तारीख है, फिजिकल रिपोर्टिंग। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट इन पर्सन ऑन दिस बिटवीन 8 to 10, दोज हु रिपोर्ट आफ्टर 10 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्पोर्ट एडमिशंस। ओके, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस। So vacant seats will be allotted to the eligible candidates based on the GATE score। Okay, GATE score के बेसिस पे ही एडमिशन होगा यहां पे भी। ओके, सो विदाउट गेट एलिजिबल इसमें नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। तो किस ग्रुप में, किस ब्रांच में, किस प्रोग्राम में वैकेंट सीट ओपन है, ये आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो मास्टर ऑफ प्लानिंग वाला प्रोग्राम है, उसमें 1 सीट ओबीसी कैटेगरी, 1 सीट जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अवेलेबल है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट एसटी कैटेगरी में है, 1 जनरल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 2 सीटें यहां पे वेकेंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं। 2 सीट्स यहां पे हैं, 1 यहां पे, 1 यहां पे। ओके, देन सिविल इंजीनियरिंग में ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन 2 सीट एसटी में है, 3 जनरल ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। और उसके अलावा इसी तरीके से सारे ब्रांच ये डिटेल में आप देख सकते हो, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। ये अलग अलग ब्रांचेस में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी अवेलेबल है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में देखो, केमिकल में 7, 3, 2, 1 सभी केमिकल में सभी जगह वैकेंसी अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। तो केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। एक यहां पे भी है, 2 वैकेंसी है ये। तो ये किस कैटेगरी की, एक बार हम चेक कर सकते हैं, ओपन कैटेगरी और आपका एससी कैटेगरी, ठीक है। यहां पे ओपन और एससी कैटेगरी में एक सीट खाली है कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, वेरी वेरी गुड ब्रांच। और इसमें अगर हम देखें कि सीट्स कहां पे वेकेंट हैं, तो एसटी कैटेगरी में 2 सीट्स आर देयर। एसटी कैटेगरी का कोई भी बच्चा जो गेट क्वालिफाइड है, 2 सीटें खाली हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी गुड ब्रांच फॉर प्लेसमेंट। ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट देयर, सो ट्राई दिस ऑप्शन। एसटी कैटेगरी के लिए वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन में एक सीट खाली है, देखो यहाँ पे। ये भी बहुत ही फेवरेबल ब्रांच है बच्चों का, और इसमें जो कैटेगरी है लास्ट में पीडब्ल्यूडी। सो इफ देयर इज एनी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो आपके लिए एक सीट यहाँ पे ओपन है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई ब्रांच, वेरी गुड ब्रांच इन एनआईटी कालीकट। देन टेलीकम्युनिकेशन में भी एक वैकेंसी है यहाँ पे, देखो टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छी ब्रांच है, वहां पे वीएलएसआई की कंपनी भी अलाउ करती है और कम्युनिकेशन में खुद बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और ये भी एसटी कैटेगरी में सीट आपकी आई थिंक अवेलेबल है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन ये वाली ब्रांच है ना हमारा, ये कॉलम देखते हैं, ये एसटी कैटेगरी में एक सीट यहाँ पे खाली है। तो टेलीकम्युनिकेशन का 100% प्लेसमेंट है वहां पे। और सिग्नल प्रोसेसिंग, स्ट्रेंज थिंग कि सिग्नल प्रोसेसिंग में ओपन कैटेगरी में 5 वैकेंसी है,
तो जो बच्चे सिग्नल प्रोसेसिंग के, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अभी तक कहीं पे एडमिशन नहीं मिला है उनको, उनके लिए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 100% प्लेसमेंट वाज देयर इन दिस ईयर इन सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच, ठीक है, 100% प्लेसमेंट वहां पे हुआ है। अच्छी ब्रांच है, आपको ट्राई करना चाहिए। जो वेटिंग में है अभी, कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है, you will definitely get placement there in signal processing, so you can think about this। 5 वैकेंसी खाली है यहाँ पे, ठीक है, और 1 वैकेंसी इस कैटेगरी में खाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में अब देखो वहां पे इलेक्ट्रिकल में और इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप पे है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। सेकंड नंबर पे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तो एक सीट उसमें भी ओपन है। ये किसी कैटेगरी में है हमारा ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक सीट खाली है। ओके, नाउ similarly you can see other branches, in every branch there are some vacancies। इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन में 5 सीट्स ओबीसी कैटेगरी की ओपन है, आप ट्राई कर सकते हैं। हाई वोल्टेज 4 ओपन, 4 जनरल, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में कहीं ऑप्शन नहीं मिला है, हाई वोल्टेज में भी जा सकते हो, प्लेसमेंट विल बी देयर। ओके, नाउ मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 1 2 2, ठीक है, तो यहां पे वैकेंसी आप देख सकते हैं 1 2 2, मतलब एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में। सो डिफरेंट ब्रांचेस में वहां पे आपको वैकेंसी दिख रही है काफी, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। एमएससी के बच्चे को लिए भी है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स यहां पे देख सकते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट। तो ये डिटेल अब मैं आगे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूं कई बार इस तरीके की चीजें डिस्कस। आप ये सारा एक बार रीड करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी आपने अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, देन यू नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। एंड मेरा जो मेन मोटिव था कि ब्रांच की प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा आपको हाईलाइट करने का, इसलिए मैंने उसको डिटेल में बताया। सो प्लीज दोज हु डोंट हैव एनी सीट, दोज हु वांट टू गेट एडमिशन देयर इन एमटेक प्रोग्राम, प्लीज फिल दिस फॉर्म and try for this opportunity। Okay, all the best।